How are you all? I hope you all are good and happy. So today we are going to begin with the lesson number 7, that is surfing internet and email. So internet has became made our life very easy. Without internet we cannot live. We order food from internet. We talk to our loved ones and relatives from through internet. And internet is controlling our life so much nowadays. So let's begin with this lesson. इंटरनेट हैज मेड एवरीवन्स लाइफ इजी एंड सिंपल. हर किसी की लाइफ इंटरनेट में इजी और सिंपल बना दी है. So it provides us amazing facility of searching any information from any corner of the world. इसके थ्रू हम क्या कर पाते हैं, फिर ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कोई भी इंफॉर्मेशन और जहाँ भी हमारे पास इंटरनेट अवेलेबल होता है पूरे वर्ल्ड में, वहाँ से हम कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं. With the help of internet, we can call to a distant person. हम इंटरनेट की हेल्प से वीडियो कॉल्स कर पाते हैं. जो लोग हमसे बहुत दूर बैठे हैं उनसे भी फाइल सेंड कर सकते हैं, मेल सेंड कर सकते हैं, मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, फाइल सेंड कर सकते हैं, मेल्स के थ्रू मैसेजेस सेंड कर सकते हैं और एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन within a few seconds. Because of its easiness and usefulness. ये आज को बहुत easy है, मतलब बहुत यूजफुल है. Internet is used everywhere such as offices, school, colleges, bank, railway station, airport, homes and in many other places. हर जगह इंटरनेट यूज होता है. स्कूल्स हो, एयरपोर्ट्स हो, बैंक्स हो, रेलवे स्टेशन हो, होम्स हो, ऑफिसेज हो, एवरीवेयर, इवन इन शॉप्स ऑल्सो. You can easily pay your bills online or shop anything on the internet. आप अपने bills को easily pay कर सकते हो, shop कर सकते हो online. Internet has become an important part of our day-to-day life. Important part बन चुका है हमारी day-to-day life का. And internet is a global computer network. A global computer network is providing a variety of information and communication facilities consisting of interconnected networks using standardized communication protocol. It is a worldwide network. ये worldwide network है आपके network of the networks जो यूज करता है links को provide करने के लिए connectivity with people and resources like net, setting, etc. Now, on an average, at least 6,000 viruses are created every month. एक average में कितने viruses पूरे month में create होते हैं? 6,000 viruses create होते हैं. Networks and its sites. A network consists of groups of computers. So groups of computers होते हैं जो connected होते हैं. It's a through physical wiring or through wireless wiring. Physical wiring के थ्रू या wireless wiring के थ्रू. So physical wiring consists of wires. Wires होते हैं, cables होते हैं जो connect होते हैं while and wireless किससे होते हैं? Satellites के थ्रू. There are 3 types of network. 3 टाइप के नेटवर्क होते हैं, LAN, MAN and WAN. LAN क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क. WAN होता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क एंड MAN होता है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. LAN क्या होता है? The network confined to a small area, जो छोटे एरिया से confined है. Examples of LANs are schools होता है, आपके buildings होता है, school computer labs तो होता है. ये आपका example है, LAN का है, ये MAN का है and WAN का है. सो व्हेन क्या होता है? व्हेन स्पेंस नेटवर्क इन लार्ज एरिया, ये बड़े एरिया में होता है. एग्जाम्पल्स है इसके कंट्रीज में लाइक इंडिया, अमेरिका एक्सेट्रा. यूजिंग व्हेन यू कैन कनेक्ट टू अदर कंट्रीज. आप दूसरी कंट्रीज से कनेक्ट कर सकते हो विद इन अ सेकेंड. व्हेन नेटवर्क इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग यूजर्स विद कंप्यूटर रिसोर्सेज इन अ लार्ज एरिया. जो यूजर्स कंप्यूटर रिसोर्सेज इन अ लार्ज एरिया में उनके लिए यूज होता है. This area is larger than LAN. LAN से ज़्यादा एरिया लार्जर होता है बट स्मॉलर होता है आपके WAN से. एग्जाम्पल है आपके MEN के नेटवर्किंग. जो एक नेटवर्किंग होती है आपके सिटी में, मोर देन 80% ऑफ द ईमेल सेंड डेली ऑन आर स्पैम. जो 80% मेल सेंड होता है ना आजकल आपके, उस ईमेल्स जो होता है वो 80% उसमें से स्पैम होते हैं. ना इंटरनेट वर्किंग एंड सर्चिंग ऑन इट्स. कैसे इंटरनेट वर्क करता है, कैसे सर्च करते हो? In order to use an internet, you need some basic things. आपको कुछ बेसिक चीजें चाहिए होती है इंटरनेट को यूज करने के लिए, लाइक कंप्यूटर, मोडेम, ब्राउजर, डायल-अप कनेक्शन, टेलीफोन लाइन, सैटेलाइट कनेक्शंस एंड अकाउंट विद ISP. A modem is a device used to connect to ISP. ऐसा डिवाइस होता है जो किस लिए यूज होता है? कनेक्ट करने के लिए ISP से. The functions of modem, functions क्या होता है मॉडेम के? टू कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल्स को electrical signals में and vice versa. So it is very important device to connect to the internet. ये बहुत ज़्यादा important device है कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट से. A browser help you to search or surf on internet. एक ब्राउजर किसमें हेल्प करता है? सर्च करने के लिए, सर्च करने के लिए इंटरनेट पे. Many browsers are available nowadays. बहुत सारे ब्राउजर्स अवेलेबल है आजकल
Few of them are Chrome Internet Browser. For ISP connection, dial-up connection should be installed on your computer. अगर आपको ISP connection चाहिए तो dial-up connection आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए. Ways to connect to internet. क्या क्या ways होता है इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए? To connect to internet, you have to follow some steps. फर्स्ट क्या होता है, आपको स्विच ऑन करना होता है कंप्यूटर एंड मॉडेम. देन आपको रन टू डायल अप कनेक्शंस पे जाना है. देन फिल इन यूजर नेम इन द बॉक्स ओवर. देन वहाँ पे यूजर नेम फिल करना है जो बॉक्स होता है. देन आपको पासवर्ड देना है पासवर्ड बॉक्स में. नाउ क्लिक करना है आपको कनेक्ट पे. योर कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट. नाउ फिर आप कंप्यूटर कनेक्ट हो जाता है इंटरनेट से. नाउ क्लिक ऑन योर ब्राउजर दैट कंप्यूटर हैज. आपको ब्राउजर पे क्लिक करना है जो आपके कंप्यूटर में है. एवरी ब्राउजर हैज एन एड्रेस बार. हर ब्राउजर में एक एड्रेस बार होता है. सो टाइप द URL. आपको URL टाइप करना होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर of a website and press enter key and click on go button. फिर आपको click on go button करना होता है, क्लिक करना होता है go button पे. Suppose you type the URL www.yahoo.com. Suppose आपने ये URL टाइप कर दिया अपने वहाँ पे, एक आपकी स्क्रीन अपीयर हो जाएगी yahoo.com की. Searching on internet, you can search any information on the internet. आप कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे. There are numerous websites which will provide you the information. बहुत सारी वेबसाइट्स है जो आपको information provide करती है. To work with the website, you should know the complete URL. आपको पूरा URL पता होना चाहिए. When you do not know the related website, these search engines help. ये search engines help करते हैं आपको. Like there are many search engines like Yahoo, Amazon, Google, Bing and many more. ये सारे आपके क्या है, सारे search engines है जहाँ पे आप information को search करते हो. Google क्या बहुत ज़्यादा पॉपुलर सर्च इंजन है आजकल. So to make a search on internet, follow the steps given below. First आपको क्या करना होता है, कनेक्ट करना होता है कंप्यूटर को अपने इंटरनेट से. Then टाइप करना होता है URL like www.co.in on address bar of the browser. Then आपको enter प्रेस करना है या फिर go बटन पे क्लिक कर देना है. सो गूगल सर्च विंडो आपके सामने ऐसे अपीयर हो जाएगी. यहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हो. देन टाइप द कीवर्ड फॉर द मैटर विच यू वांट टू सर्च इन द सर्च. आपको कीवर्ड टाइप करना होता है. देन आपको क्लिक करना है गूगल सर्च बटन पे और सिंपली आपको प्रेस भी कर सकते हो एंटर को. सपोज वी वांट टू मेक अ सर्च ऑन बुकमैन इंडिया. कोई हमें सर्च करनी है बुकमैन इंडिया पे. आपको बुकमैन इंडिया टाइप करना है अपने सर्च बॉक्स में, क्लिक कर देना गूगल सर्च बटन पे. As soon as we click, it starts searching. वो सर्चिंग स्टार्ट कर देता है. डिस्प्ले करता है रिजल्ट्स as shown ahead. You can also search the images. आप images भी search कर सकते हो on the search engine. यहाँ पे कुछ भी images आ सकते हैं. images पे click करके the only change you will have to make it that you have to click on the image. आपको image पे click करना होता है. जो search में आते top results के आपके top search results आपके सामने आ जाएंगे. Number of email users around worldwide कितने हैं? 3.7 billion users है email के. ईमेल फीचर्स एंड ईमेल के क्या क्या फीचर्स होता है और यूजेस होता है. ईमेल इज द एब्रीविएटेड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल. ये एब्रीविएटेड फॉर्म है आपके किसका, शॉर्ट फॉर्म है आपके इलेक्ट्रॉनिक मेल का. ईमेल इज डिफाइंड एज ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस ओवर कम्युनिकेशन नेटवर्क. ये ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस होता है आपके कम्युनिकेशन नेटवर्क में. थ्रू ईमेल यू विल बी एबल टू सेंड फोटोज, ऑडियोज, वीडियोज, ईमेल्स एक्सेट्रा विद इन अ फ्यू सेकंड्स टू एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. किसी भी कॉर्नर ऑफ अपने वर्ल्ड में. To send or receive the mails, you must have an email account. आपके पास एक email account होना चाहिए अगर आपको मेल सेंड करने या रिसीव करने हैं तो. email account. To use an email service, you must have an email account. This account give you an email address. एक email account आपको क्या देता है, email address दे देता है, to which other you can send messages and from which you can send message to others. And email address is a unique address. ये आपका एकदम unique address होता है जो identify करता है sender को. The email address is a combination of two parts. ये दो parts का combination होता है username का and domain name का like google.com होता है, gmail.com मतलब gmail.com होता है. Suppose here example है manish10@gmail.com. So ये क्या आपका domain name है और manish10 क्या है, user name है. So these two are separated by symbols. किससे separated है, @ के symbol से separated है. and @ means The example of an email address is given below. Example है आपका how अब कैसे बनाता है email account. To use email facility, we need to get registered with an email service provider. हमें email service provider से register करना पड़ता है to our email ID over internet. And many websites are available to give us the facility of creating an email. बहुत सारी websites है email बनाने, email send email ID बनाने के लिए, email account बनाने के लिए. Few of them are yahoo.com, Redis Mail, Gmail. Here we have taken Gmail as an example. यहाँ पे हम Gmail, Google का example ले लेते हैं.
ये किसका है? ईमेल किसका एड्रेस होता है? गूगल मेल एड्रेस होता है. Gmail is the product of Google and it gives you a free mail service. ये free email services देता है आपको. This email service provides you a permanent internet email address. ये आपको permanent internet email address provide करता है. To create an email account, follow the steps given below. आपको start करना है, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाना अपने कंप्यूटर पे, एंटर करना है वेब एड्रेस www.gmail.com अपने एड्रेस बार में, देन जीमेल ब्लॉग पे क्लिक करना है, पेज आपके जीमेल लॉग का पेज आपके सामने अपीयर हो जाएगा. देन आपको क्लिक करना है क्रिएट एन अकाउंट पे इन द लॉग ऑन पेज टू ओपन जीमेल रजिस्ट्रेशन फॉर्म. फर्स्ट आपको एंटर करना है अपना नेम, देन फॉर फर्स्ट नेम एंटर करना है, फिर देन लास्ट नेम एंटर करना है इन द फॉर्म, एंड आफ्टर दैट आपको डिजायर्ड यूजर नेम एंटर कर देना है, लाइक 20, 10 या कुछ भी. इफ समवन एल्स हैज टेकन द सेम यूजर नेम, अगर किसी और का भी सेम यूजर नेम होगा तो वो आपको अपीयर नहीं होगा, आपके सामने आएगा कि चूज सम अनदर या someone has already used this name, ऐसा अपीयर हो जाएगा. someone has already taken that user name, ऐसे इस पे एक ऑप्शन अपीयर होगा. try another and show you choices, आपको all choices भी शो करता है कि आप ये ले सकते हो. once your username is selected, जब आपका यूजरनेम सेलेक्ट होगा आपको पासवर्ड एंटर करना है. एटलीस्ट 8 मिनिमम कैरेक्टर्स होने चाहिए. रिपीट करना है सेम पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड बॉक्स में. then you will see a check box say आई एग्री टू द गूगल टर्म्स एंड कंडीशन. एक चेक बॉक्स आपके सामने अपीयर होगा जिसका आप एग्री करोगे उनके टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए. उसको रीड करके आप क्लिक कर दोगे चेक बॉक्स पे एग्री करके. नाउ जीमेल वांट्स टू वेरीफाई योर कॉन्टैक्ट नंबर एज वेल. अब जीमेल क्या करना चाहता है? वेरीफाई करना चाहता है आपके सामने कॉन्टैक्ट नंबर. फॉर दिस बिलो मेंशन स्क्रीन विल अपीयर, आपके सामने एक स्क्रीन अपीयर हो जाएगी लाइक दिस. परसेंटेज ऑफ पीपल who checks email while watching TV is 75 or 70%. 70% मेल लोग टीवी को वॉच करते हुए मेल्स चेक करते हैं. ऑन दिस डायलॉग बॉक्स प्रोवाइड यू फोन नंबर. यहाँ पे एक फोन नंबर प्रोवाइड होगा जिसपे एक ओटीपी जाएगा, वेरिफिकेशन कोड. सब ऑन योर मोबाइल यू विल गेट अ वेरिफिकेशन कोड टू क्रिएट द अकाउंट सक्सेसफुली. फिल दिस वेरिफिकेशन कोड. आपको वेरिफिकेशन कोड को फिल कर देना है. वेरिफिकेशन कोड बॉक्स पे आप ऐसे डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, यू सेंड योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली. यहाँ पे एक ऐसा ऑप्शन आएगा कि आपका अकाउंट बन चुका है अच्छे से. नाउ क्लिक ऑन, आपको क्लिक करना है किसमें? शो मनी माई अकाउंट बटन पे. ये आपको आपका अकाउंट शो हो जाएगा. अब लॉग इन कैसे करते हैं, लॉग आउट कैसे करते हैं जीमेल अकाउंट को? आफ्टर क्रिएटिंग अ जीमेल अकाउंट यू सेंड एक्सेस टू यू कैन एक्सेस ऑल द मेल्स और सेंड एनी मेल. आपके सारे ईमेल से एक्सेस आ जाता है जो आपके होते हैं और आप कोई ईमेल सेंड कर सकते हो. इट मीन्स यू आर लॉग्ड इन योर जीमेल अकाउंट. इसका क्या मतलब होता है? आपने लॉग इन करा था अपने जीमेल अकाउंट में. To log out or sign out from your Gmail account, on your right side at the computer screen, you will see at a circle. आपको राइट साइड में होगी सर्कल जो करेगा, यानी आज जब आप इस पर क्लिक करोगे मेंशन स्क्रीन आपके सामने अपीयर हो जाएगी. और एक सेम राइट साइन आउट बटन विल अपीयर. क्लिक ऑन इट टू लॉग ऑन. आपको उस पर क्लिक करना होता है साइन आउट या लॉग आउट पे. To log in or sign in again in your Gmail account, type करना होता है www.gmail.com. इन द एड्रेस बार ऑफ द ब्राउजर, देन यूजर नेम और पासवर्ड डालना होता है, फिर आपके साथ आप लॉग इन कर लोगे इजीली. दिस फोल्डर गिव ऑल द मेल्स इन योर यू हैव सेंड. इसमें जो आता है और सेंडिंग लिंक का ऑप्शन होता है. इससे सारे वो मेल्स होते हैं जो आपने आज तक सेंड करे होंगे. ड्राफ्ट में जो होता है जो आपने सेंड नहीं करे बट टाइप कर रखे हैं. द फोल्डर कंटेन्स इनकम्प्लीट और सेव टेक्स्ट फॉर मेल्स टू सेंड लेटर. स्पैम होता है, इट इज वेयर द सस्पिशियस मैसेजेस को, यहाँ पे आपके सस्पिशियस मैसेजेस चल जाते हैं. Press every message you delete either from inbox or send mails goes to pressure. Pressure चला जाता है. To send and receive mail. Main motive behind creation of an email account is to start having communication. जिससे आप communication कर सकते हो through emails. So now let's learn how to do it. कैसे करते हैं? To send an email to someone you must have to correct email. आपके पास इसका एक correct email address होना चाहिए जिसको आप mail send कर रहे हो. To send email to others, follow the given step. आपको मैं लॉग इन करना है अपने जीमेल अकाउंट में. ऑन योर लेफ्ट साइड यू विल सी अ बटन. आपके लेफ्ट साइड में एक बटन मिलेगा, कंपोज का ऑप्शन आएगा. यहाँ पे आपके लेफ्ट साइड में कंपोज का ऑप्शन आ जाता है, उस पर आप क्लिक करोगे ये स्क्रीन आपके सामने अपीयर हो जाएगी. देन इन टू बॉक्स आपको लिखना है किसको आपको मेल सेंड करा, उससे ईमेल एड्रेस लिखना है. फ्रॉम में आपका अपने आप आ जाएगा. राइट द सब्जेक्ट, आपको सब्जेक्ट लिखना है कि आपका मेल किस रिगार्डिंग है. एंड देन टाइप करना आपको मैसेज इज प्रोवाइडेड एरिया में. डू नॉट फॉरगेट टू राइट योर नेम एट द एंड ऑफ द ईमेल एड्रेस. आप अपना नेम भी लिख सकते हो ईमेल एड्रेस में
और आपको रिसीव करना है ईमेल एड्रेस। ईमेल ट्रेवल्स ऑन हाई स्पीड पर ट्रेवल करता है। If someone has sent you a mail that you can see it in your inbox, आप वहाँ पे देख सकते हो उसको, अपने इनबॉक्स में देख सकते हो। When you will log in your Gmail account, email window, now when you want to send a mail to someone, you will click on compose। जब आपको सेंड करना है तो आपको compose पे क्लिक करना है। अगर आपको फिर किसी का मैसेज आया हुआ देखना है तो आपको इनबॉक्स पे क्लिक करना है। So a window will open and this is called email window. The email window is divided to two parts. Email window दो parts में divided होती है, header part and body part. Header part contains information related to sender, sender से related सारी information रहती है इसमें, और recipient से related। From to CC means carbon copy होती है जो email address को आप भेज रहे हो। You use the CC key to send a courtesy copy which is a copy of message। कॉपी होती है मैसेज की that you send to one or more people at a first see so that these people are aware of। ये लोग अवेयर होते हैं आपके कंटेंट्स के बारे में, आपके मैसेज के। BCC होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी जो किसी को शो नहीं होती। You use BCC feed to send the same message to several people। आप सेम मैसेज several people को भेजते हो without knowing them that others have also received the same message। इसका मतलब होता है कि उनको पता नहीं चलता कि औरों पे भी ये मैसेज ही है। सब्जेक्ट अ वेरी शॉर्ट कंटेंट ऑफ योर मैसेजेस रिटर्न की किस रिगार्डिंग आपका मैसेज है, किस रिगार्डिंग आपका मेल है, उसको शॉर्ट कंटेंट लिख सकते हो। बॉडी इसमें आप सारा अपना मैसेज लिख देते हो। द मैसेज कंटेन्स द कंटेंट, द बॉडी ऑफ अ मैसेज कंटेन्स द कंटेंट ऑफ मैसेज। एट एंड ऑफ एवरी ईमेल बॉडी यू शुड राइट योर नेम। आपको अपना नेम लिखना होता है, आपका ग्रीटिंग। इट इज कॉल्ड अ सिग्नेचर, वो सिग्नेचर होता है। सेंड दिस बटन इज यूज टू सेंड द ईमेल मैसेज। ये किस लिए यूज होता है? सेंड करने के लिए ईमेल मैसेजेस को रेसिपिएंट को। टर्म्स रिलेटेड टू ईमेल, क्या क्या टर्म्स रिलेटेड है ईमेल से? देयर आर वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू ईमेल। रिप्लाई, फॉरवर्ड, डिलीट, मूव, प्रिंट, स्माइल्स। रिप्लाई दिस बटन enables you to reply to your sender। आप रिप्लाई कर सकते हो जो आपके पास मेल आया उसका। फॉरवर्ड मतलब आप फॉरवर्ड कर सकते हो किसी और को मेल को। डिलीट को आप डिलीट कर सकते हो अपने मेल को। टू डिलीट एनी मेल फर्स्ट you have to select it। move this button moves the email to your personal folder। आपके मेल को पर्सनल फोल्डर में मूव कर देता है। print this button enables you to get print out of the mail। आपको प्रिंट आउट मिल जाता है अपने मेल का। स्माइलीज, these are also known as emoticons। इनको इमोटिकॉन कहते हैं। दे आर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। आप इसमें इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हो कंप्यूटर कीबोर्ड पे। इफ यू डोंट सी, ट्राई टिल्टिंग योर हेड एंड टू द लेफ्ट। आपको अगर नहीं मिला अपना हेड को लेफ्ट की तरफ फ्लिप करो। द कॉलन इज द आई। जो कॉलन होता है आईज का डैश होता है आपका, रिप्रेजेंट करता है नोज को। एंड राइट एंड पैरेंथेसिस इज द माउथ। राइट पैरेंथेसिस क्या होता है? माउथ होता है। A smiley tells someone what you really mean that when you make an offhand remark। These are your offhand remarks। Some smiley and their meanings। Spry का ये होता है laugh, bow, great, tongue out, angel or anger you can say। Smiley, sad, wink, screaming, kissing, cloning। So in this way you send a message to anyone। So advantages क्या क्या है email भी? email के advantages क्या होता है? email क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसके advantages क्या होते हैं? बहुत सारे advantages है। easy है यूज करने के लिए। it has a data storage capacity, it is reliable and secure, it has a fast speed होता है और cost effective भी होता है। Thus email has a become a primary way of communication। यहाँ पर प्राइमरी वे बन चुका है कम्युनिकेशन के लिए। अगर आपको लीव चाहिए होती है आप मेल कर सकते हो ऑफिस में, बिजनेस वर्ल्ड में, schools में। So that's all for this lesson। I hope you all like the explanation of this lesson। Thank you and have a wonderful day।